ایک دن گورے غریباں سے ہوا میرا گزر، پاؤں سے ٹکرا گیا اچانک کسی مردے کا سر، آئی آواز اے سن لے تو بھی بے خبر، میں بھی کبھی بادشاہ تھا، میرے قبضے میں تھی دنیا، میرا راج تھا میرے سر پر تاج تھا، اب دیکھ لے وہی سر تیرے قدموں کی ٹھوکروں میں پڑا ہے، میں دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا، رب کو بھی بھلا بیٹھا میں اس قدر مغرور تھا، ڈھل جائے گی یہ جوانی، ڈھل جائے گی یہ جوانی، جس پہ تجھ کو ناز ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے، غریبوں کی دنیا سے تو گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کہ یا رسول اللہ کانی اسمع عوا اہل النار، جہنمی جو کلمے کے بغیر مر کر جہنم میں چلے گئے، جو کبیرہ گناہوں سے توبہ کے بغیر جہنم میں چلے گئے، جو پیارے آقا کی صورت اور سیرت کو سرسری سمجھتے رہے، اچھا آج کر لیتے ہیں سنت کی پابندی، کل کر لیں گے سنت کی پابندی، ابھی تو میرے کھیلنے کے دن ہیں، ابھی تو میری جوانی ہے، ابھی تو میرے ہنسنے کے دن ہیں، ابھی تو میرے دنیا کی چہل پہل کے ایام ہے، اسی غفلت میں چلتا رہا، اور ادھر سے موت کا پیالہ، کیونکہ موت وہ تو کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں تمام دوستوں کو، یاروں کو ان کے یاروں سے جدا کر لیتی ہوں، انا الموت الذی افرق بین الازواج والزوجات، میں شوہروں کو بیویوں سے، بیویوں کو ان کے شوہروں سے جدا کر لیتی ہوں، انا الموت الذی افرق بین الامہات والبنات، میں وہ موت ہوں، مائیں بیٹیوں کی موت پر روتی رہیں گی، اولادیں بیٹیاں اپنی ماں باپ کی اموات پر روتے رہیں گے، اور میں جس کا وقت پورا ہو جائے گا میں اس کو لے کر دنیا سے چلی جاؤں گی، کہاں سکندر، کہاں ہے جم اور کہاں ہے دورہ، یہ سب کے سب خاک کے تھے پتلے، بگاڑ ڈالے بنا بنا کر، الہی ان راہ عدم مسافروں کو یہ کیسی نیند آ گئی کہ جب سے سوئے پھر نہ اٹھے تھکے ہم ان کو جگا جگا کر، دنیا سے جانے والے مڑ کے نہیں آیا کرتے، یہ دنیا کی زندگی محض امتحان ہے، یہاں آخرت کے لیے ہم فکر کر لے، کب تک صرف باتیں ہوتی رہیں گی، باتوں کا وقت نہیں رہا، عمل کا وقت ہے، اپنے آپ کو ہم دین کے لیے، اسلام کے لیے، فکر آخرت جس میں ہوتی ہے اس کی زبان سے بھی نظر آئے گی، اس کے عمل سے بھی نظر آئے گی، اس کے کردار سے بھی نظر آئے گی، اس کے شوق و ذوق سے بھی نظر آئے گی، اس کے اللہ کے خوف اور تقوی سے بھی نظر آئے گی، ورنہ تو رہ گئی رسمی اذانیں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی،
जब फिक्र सही होगी तो फिर फैसले आखिरत के बारे में भी एक्सेप्ट होंगे, आखिरत के बारे में भी फैसले फिर वो बिल्कुल 100% होंगे। क्यों? तेरी दुनिया का फैसला इतना सही, तू कोठी बनाने में कामयाब, तू बंगला बनाने में कामयाब, तू मालदारी में कामयाब, तू तिजारत में कामयाब, तू जिम्मेदारी में कामयाब, तू हुस्न जमाल में कामयाब, तू इक्तदार में कामयाब, तू शोहरत में कामयाब, तू दुनिया में कामयाब ही कामयाब होने के ख्वाब भी देखता है और कामयाब होके दिखाता है। और जब बारी आती है नमाज की, जब बारी आती है कलमे की, जब बारी आती है कुरान की, जब बारी आती है इस्लाम की, जब बारी आती है बैतुल्लाह की, जब बारी आती है रोज़ा रसूलुल्लाह की, जब बारी आती है बैतुल मक़दस की, जब बारी आती है मसाजिद मदारिस की, इस्लाम के दिफा करने की, जब बारी आती है खत्मे नबूवत के पैगाम की, जब बारी आती है सीरत सहाबा की, जब बारी आती है सीरत औलिया की, तो फिर बंदा बिल्कुल पीछे हट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां कहते मौलवी साहब जी बस दुआ कीजिएगा, आप दुआ फरमा दीजिएगा अल्लाह हमारे साथ अच्छा मामला करे। अल्लाह तो अच्छा मामला करेगा, हम कोई फिक्र दिखाएं कि जिससे जिंदगी का कोई पहलू ऐसा निकले कि ना तेरी नमाज कज़ा हो। हारिस बिन मालिक कहते हैं मैं जहन्नमियों की आवाज सुन रहा हूं और आज की नई जनरेशन वो गानों की आवाजें सुनते हैं। इन्हें कौन सी जहन्नम के 7 हिस्से हैं, किस जहन्नम से आवाज आ रही है कि कौन से कौन, नॉलेज भी इतना नहीं है। वो कौन सा नॉलेज है, वो कौन सा इल्म है जिस पर अमल ना हो। क्या बेनमाजियों की जलने की आवाज आ रही है? क्या रोजा न रखने वालों की जहन्नम की सजा किसी को नजर आ रही है? क्या हज जिसने इस्तेताअत के बावजूद नहीं किया, प्यारे आका ने फरमाया गिला ना करे, वो यहूदी मर जाए या नसरानी बन जाए। कितने साहिबे इस्तेताअत ऐसे हैं जो 4 लाख 5 लाख बचाने के लिए हज को दाव पे लगा देते हैं, अगले साल कर लेंगे। वो प्राइवेट भी कर सकते हैं, सरकारी अप्लाई करते रहते। मुफ्तियान किराम से पूछिए तो सही, इस्लाम के इन मौजूआत में कितनी नजाकत। तेरी दुनिया का हर मौजू इतना कीमती और इस्लाम के हर काम को इग्नोर कर देते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हारिस बिन मालिक की बातें सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने अपने दावे के सही दलाइल बयान किए हैं। नुब्बिरा कल्बुहु बिल ईमान औ कमा काला अलैहिस्सलाम। ए हारिस बिन मालिक तू गवाह हो जा, मैं तेरे लिए गवाह बन रहा हूँ, अल्लाह भी गवाह है, जिब्रील भी गवाह है कि तू वाकई तेरा दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर है और उस आयत के मिस्दाक हो अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुव अला नूर मिन रब्बिही। अगर नमाजें कज़ा हो रही है मुसलमानों, सीने में इस्लाम का भी बुख्ल मौजूद है, सखावत नहीं हुई। अगर रोजे हज ज़कात कज़ा हो रही है, नबी की सूरत और सीरत के लिए दिल नहीं करता, पर्दा हया पाक दामनी मां बहन बेटी को अभी भी नसीब नहीं हुई, तो फिर ये बुख्ल छोड़कर सखावत की तरह आना होगा, कामिल नूर होगा। फिर हया और पर्दा इसको भी एक नंबर पे रखेंगे। कलमे कुरान और नमाज को अपने बच्चों को बजाए यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने के, हम उनको दीन की तालीम को अव्वल नंबर पर रखेंगे बवजह जरूरत दुनियाविया। उसके बाद हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ाना चाहें तो कोई ममानियत नहीं है शरीयत का लिहाज करते हुए, लेकिन पहले नंबर पर अगर हमें वो नूर कामिल होता, हर मुसलमान कहता मेरी तमाम बेटियां वो सब कुरान के कारी और मुअल्लिमात हों और मेरे तमाम बेटे वो कुरान के कारी और वो दीन के आलिम भी हों, जिनके सीनों में नूर होता है, वो अपने वालिदैन की खिदमत को शरीयत का एक हुक्म समझकर उसको भी हर हाल के अंदर करते हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात आली का हुक्म है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद ये दोनों लाजिम मलजूम की तरह है। मैं अक्सर जरूर ये पैगाम दिया करता हूँ, बहुत सारे मुस्लिम मुआशरे में इस्लाही मुआशरा का प्रोग्राम है, इस बात को बहुत ज्यादा रिजेक्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग हुकूकुल्लाह की आड़ लेकर हुकूकुल इबाद को पामाल कर देते हैं। बहुत सारे लोग
लोग हुकूकुल इबाद का सहारा लेकर हुकूकुल्लाह से कोताही में लग जाते हैं। हालांकि ये दोनों लाजिम और मलजूम है। वो तो सिर्फ हुकूकुल्लाह की एक तरजीह मखलूक खिदमत खल्क और हुकूक मखलूक की अहमियत को बयान करने के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में ये बात आ गई। इसका इतना गलत मतलब ले लिया गया कि बड़े आराम से नमाजें कज़ा करते रहते, रोजे कज़ा करते रहते, हज कज़ा करते रहते, हुकूकुल्लाह कज़ा करते रहते और कहते जी हम तो हुकूकुल इबाद पूरे कर रहे हैं। आपको पता नहीं है मौलवी साहब, आपको पता नहीं भाईजान, ये पहले है वो बाद में है। यहां तक भी लोगों से सुना। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामिआत, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर कि तेरे रब का ये फैसला है कि ये पेशानी, ये सजदा, ये इबादत सिर्फ एक अल्लाह को सजती है, अल्लाह के सिवा कोई इसका मुस्तहिक नहीं है मखलूक में। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन की खिदमत करो। वालिदैन इतना बड़ा सरमाया है, जब वो दुनिया से चले जाते फिर बंदा परेशान होता है, आंखों से आंसू भी आ जाते, दिल भी नरम हो जाता है। हालांकि जिंदगी में वालिदैन का हुकूक ये बहुत ज्यादा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा मिन वलादिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा। फरमाया जो बेटा सुबह सुबह उठे, जो बेटी सुबह सुबह उठे, अपने अम्मी अपने अब्बू शफकत भरी निगाहों से, रहमत भरी निगाहों से उठकर एक दफा अपने माँ बाप की जियारत कर ले। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। वो इतना करीम है कि इस देखने वाले बेटे और बेटी के नामे आमाल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मकबूल हज का सवाब लिख देते। साहबा ने इसके कालो इन नज़र कुल्ला यौम मिया मर्रा, एक दिन में या रसूलल्लाह कोई 100 मरतबा देखे। फरमाया आपने ये नहीं कहा 100 का जवाब 100 नहीं दिया, फरमाया अल्लाहु अकबर व अल्लाहु अतयब, और अल्लाहु अकबर की उलमा से तशरीह पूछी अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, कि अल्लाह इन हिसाबों किताबों का मुताज नहीं, कोई 100 नहीं 1000 बार देखे, लाख बार मौत से पहले पहले देख ले, करोड़ बार देख ले, अल्लाह उसके खाते में नफली हज के करोड़ों अरबों मरतबा भी सवाब दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे फर्ज हज साकित हो जाता है। फर्ज हज तो फर्ज हज चाहे सैकड़ों हज कर लिए जाए, फर्ज हज तो वो अदायगी से ही होगा, उसके बगैर नहीं होगा।